Hello students, today we are going to read English chapter 1, Sia's Dream. In this chapter we are going to read about the Sia's dream. These are the characters of this chapter: Sia, Priya and her parents. Priya is the friend of Sia. So let's start our new chapter. Sia was the most intelligent girl in her class. Her parents thought that she would become a doctor or an engineer. They encouraged her to study hard and made sure that she got the best education. They sent her to an excellent school and the best tutors were hired to teach her. सिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने और वो हमेशा उसको अपनी पढ़ाई के लिए इनकरेज करते थे. उसको बेस्ट ट्यूटर्स अवेलेबल कराते थे. उसको एक अच्छे स्कूल में भेजते थे. But Sia was not happy. She loved to study, but she never got time to play like other children. She always felt jealous whenever she saw children playing in the school playground and in the garden beside it. And every time she walked past the tennis court, she could not take her eyes off the players on the court. Whenever she had any spare time, she went to the school library to read about tennis players. If she had a chance to watch television, she always watched tennis tournaments. Sia daydreamed all the time about tennis. पर सिया खुश नहीं थी. उसको पढ़ना अच्छा तो लगता था, पर उसको कभी एक खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, जिस वजह से वो दूसरे बच्चों से जेलस होती थी जब वो उनको खेलता देखती थी. जब भी वो टेनिस कोर्ट के पास से गुजरती थी तो हमेशा उस टेनिस कोर्ट पर खेलते हुए लोगों को देखती. जब भी उसको स्कूल लाइब्रेरी में टाइम मिलता तो वो लाइब्रेरी में जाके टेनिस के बारे में पढ़ती. जब भी उसको टेलीविज़न देखने का टाइम मिलता तब वो हमेशा टेनिस टूर्नामेंट्स देखती. वो हमेशा पूरे टाइम टेनिस के बारे में ही देखती और सोचती रहती थी. On her 10th birthday, her parents arranged a grand birthday party for her. All her friends from the neighborhood and from her school were invited. But Sia was sad. She didn't have the courage to tell her parents that she wanted to become a tennis player and play tennis. Priya, her best friend, was at the party. जब सिया का 10th बर्थडे था तब उसके मम्मी पापा ने एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें उसके सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदार और घर के पड़ोसियों को बुलाया गया. पर सिया सैड थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही थी कि उसको टेनिस खेलना है, एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है. सिया की दोस्त प्रिया, वो भी उस पार्टी में थी. Priya saw that Sia was not enjoying her birthday party. Sia, what's wrong? She asked her. Why are not you enjoying your party? प्रिया ने देखा कि सिया अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही है. तभी उसने सिया से पूछा कि सिया, तुम अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो? ये तो तुम्हारा ही बर्थडे है. You are right, Priya, replied Sia. I am not happy. I don't have the courage to tell my parents that I want to play tennis and become a tennis player. तभी प्रिया ने सिया से कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो. मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं अपने फादर और मदर को ये नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे एक टेनिस प्लेयर बनना है और टेनिस खेलना है. डोंट वरी सिया, सेड प्रिया विद अ स्माइल. दे विल अंडरस्टैंड. आवर पेरेंट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. दे अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड विशेस. सो बी चेयरफुल एंड एंजॉय योर बर्थडे पार्टी. तभी सिया कहती है कि प्रिया, तुम दुखी मत हो. हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो हमें समझेंगे. वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारी विशेस भी जानते हैं. तो अपनी पार्टी को एंजॉय करो और खुश रहो. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश चैप्टर 1, सिया's ड्रीम. In this chapter we are going to read about the Sia's dream. These are the characters of this chapter: Sia, Priya and her parents. Priya is the friend of Sia. So let's start our new chapter. Sia was the most intelligent girl in her class. Her parents thought that she would become a doctor or an engineer. They encouraged her to study hard and made sure that she got the best education. They sent her to an excellent school and the best tutors were hired to teach her.
सिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, और उस और वो हमेशा उसको अपनी पढ़ाई के लिए इनकरेज करते थे, उसको बेस्ट ट्यूटर्स अवेलेबल कराते थे, उसको एक अच्छे स्कूल में भेजते थे। बट सिया वॉज नॉट हैप्पी। शी लव्ड टू स्टडी बट शी नेवर गॉट टाइम टू प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन। She always felt jealous whenever she saw children playing in the school playground and in the garden beside it. And every time she walked past the tennis court, she could not take her eyes off the players on the court. Whenever she had any spare time, she went to the school library to read about tennis players. If she had a chance to watch television, she always watched tennis tournaments. Sia daydreamed all the time about tennis. पर सिया खुश नहीं थी। उसको पढ़ना अच्छा तो लगता था, पर उसको कभी खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, जिस वजह से वो दूसरे बच्चों से जेलस होती थी जब जब वो उनको खेलता देखती थी। जब भी वो टेनिस कोर्ट के पास से गुजरती थी तो हमेशा उस टेनिस कोर्ट पर खेलते हुए लोगों को देखती। जब भी उसको स्कूल लाइब्रेरी में टाइम मिलता तो वो लाइब्रेरी में जाके टेनिस के बारे में पढ़ती। जब भी उसको टेलीविज़न देखने का टाइम मिलता तब वो हमेशा टेनिस टूर्नामेंट्स देखती। वो हमेशा पूरे टाइम टेनिस के बारे में ही देखती और सोचती रहती थी। ऑन हर 10th बर्थडे हर पेरेंट्स अरेंज्ड अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी फॉर हर। ऑल हर फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड एंड फ्रॉम हर स्कूल वर इन्वाइटेड, बट सिया वॉज सैड। शी डिडंट हैव द करेज टू टेल हर पेरेंट्स दैट शी वॉन्टेड टू बिकम अ टेनिस प्लेयर एंड प्ले टेनिस। प्रिया, हर बेस्ट फ्रेंड, वॉज एट द पार्टी। जब सिया का 10th बर्थडे था तब उसके मम्मी पापा ने एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें उसके सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदार और